हार्मोनल ट्रीटमेंट इन ब्रेस्ट कैंसर जो हम देते हैं दैट इज़ बेसिकली फॉर दोज ब्रेस्ट कैंसर्स हु आर ER/PR पॉजिटिव, HER2/neu नेगेटिव। और ये हार्मोनल ट्रीटमेंट इनिशियली हम 5 years के लिए देते थे, लेकिन नाउ वी हैव एक्सटेंडेड दिस हार्मोनल ट्रीटमेंट ड्यूरेशन फ्रॉम 5 years to 10 years for those women who are at high risk of recurrence. Now these are especially those women who are node positive, यानी कि उनका जो कैंसर है वो lymph nodes में भी स्प्रेड हुआ होता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर दोज पेशेंट्स। और जो लिम्फ नोड नेगेटिव होती हैं उनमें हम सिलेक्टेड पेशेंट्स के अंदर 10 years हार्मोनल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम गेट ओनली 5 years ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट, बट स्टिल it's different for different patients, so it's not like a generic rule कि सबको हम 5 years देंगे। So it depends how your oncologist decides based on your reports. सो हार्मोनल ट्रीटमेंट बेसिकली टैबलेट्स होती हैं जो कि बेसिकली आपकी बॉडी के एस्ट्रोजन को सप्रेस करती हैं। सो एस्ट्रोजन इज़ अ हार्मोन जिससे आपका जो कैंसर है वो ग्रो करता है। सो एस्ट्रोजन इज़ अ फीमेल हार्मोन, सो वी हैव टू एक्चुअली ब्लॉक एस्ट्रोजन so that if there are any cancer cells in the body, they don't grow or they die. So these hormonal treatments are different kinds of tablets जो patients जो प्रीमेनोपॉजल होती हैं इनके जिनके साइकिल्स रेगुलर होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं रेगुलर होते हैं, उनके लिए हम डिफरेंट हार्मोनल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। और जो पेशेंट्स पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं उनके लिए हम डिफरेंट हार्मोनल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। सो हर हार्मोनल ट्रीटमेंट के अपने बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वी डिस्कस्ड with each patient individually. लेकिन a very important thing to remember is कि hormonal treatments are generally very safe treatments और उनके side effects they are generally acceptable and manageable. So that's why we are able to give them for a long time, 5 to 10 years. और in case with one hormonal treatment we feel कि कोई effects हो रहे हैं body पे, तो we can switch to another hormonal treatment depending on the reports and condition of the patient. So it's not like कि अगर मैंने किसी को कह दिया है कि ये tablet लेनी है 10 साल के लिए तो it is always the same tablet. So sometimes we have to switch from one tablet to another tablet depending on the toxicity profile and depending on how the patient is tolerating the medicine. So this is how the hormonal treatment is done. कुछ ऐसे injections भी हम use करते हैं which are also part of hormonal treatment। और जो मेरी बहुत सारी पेशेंट्स हैं और जो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट से पेशेंट्स गुजरी हैं उनको पता होगा कि हम एक इंजेक्शन एवरी 4 weeks देते हैं दैट इज़ बेसिकली मेंट टू सप्रेस योर ओवरीज। सो ऐसे पेशेंट्स जिनका ER/PR पॉजिटिव, HER2/neu नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है उनको additionally in addition to hormonal treatment depending on the risk factor, depending on their cancer risk, for example अगर किसी को high risk cancer है तो उनको हम in addition to those tablets we give injections, and these injections are meant to suppress their ovarian function. So obviously if somebody is postmenopausal, so they don't require these injections. So basically these injections are particularly for premenopausal women या ऐसी women जिनका menopause नहीं हुआ और या जिनके menstrual cycles regular, सिर्फ उन्हीं को दिए जाते हैं, and they provide basically added benefit in addition to those tablets. So अगर आप node positive हैं और at high risk of cancer relapse हैं तो generally we advise some injections along with tablets. ये injections जो हम ऐड करते हैं either they are given for 2 years or they are given for 5 years depending कि आप patient का risk किस तरीके से assess कर रहे हैं. So some patients for some patients I advise them for 2 years, for some patients I consider them for 5 years. So it is different based on patients' reports and it's individual decision for every patient. So what these injections are doing is they are blocking ovaries. So now the question is, which have been raised at many times, कि ये injections जो होते हैं ये obviously आपके breast treatment की cost को increase कर रहे होते हैं, and we are basically using them for women who are premenopausal to make them postmenopausal. So are there any alternative ways, कि कोई alternative ways हैं कि हम उनको instead of giving these injections हम उनके ovaries को किसी और तरीके से suppress कर सकें? तो yes, there are other ways of suppressing the ovaries. एक तो simple सा procedure है कि आप ovaries remove करा दें. So if you have completed your family and you are at high risk of breast cancer, you can go ahead with and you have ER/PR positive, HER2/neu negative breast cancer, you can have
oophorectomy यानी कि removal of ovaries along with the breast surgery. So that is again a very individual decision, and it is not for everyone. So removal of ovaries यानी कि एक simple surgery जिसके अंदर mostly laparoscopic की जाती है, कैमरे के ज़रिए की जाती है, 3 cuts के ज़रिए, और उसमें ovaries को remove कर दिया जाता है, and then you don't need those injections. और दूसरी चीज़ जो कि हम in addition to as an alternative to actually surgery हम offer कर सकते हैं, वो रेडिएशन टू द ओवरीज है। यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनको हम ब्रेस्ट कैंसर रेडिएशन दे रहे हैं एंड दे हैव ER/PR पॉजिटिव HER2 नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर एंड दे आर एट हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिलैप्स, उनकी हम ओवरीज पे रेडिएशन दे दें और उनकी फैमिली कंप्लीट है तो ओवरीज पे रेडिएशन देंगे, तो एंड दिस कैन बी गिवन एट द सेम टाइम जिस टाइम हम ब्रेस्ट की रेडिएशन कर रहे हैं। सो जब ओवरीज पे रेडिएशन होगी तो उससे भी ओवरी का फंक्शन परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डोज ऑफ रेडिएशन, ओवरीज बहुत रेडियो सेंसिटिव होती हैं, सो वेरी स्मॉल डोज ऑफ रेडिएशन, वेरी सिंपल ट्रीटमेंट, minimal to no side effects, and these can be given along with the breast radiation. So for those women who are being offered those injections, they have an alternative treatment of oophorectomy, which means ovarian removal, or they have an alternative treatment of ovarian ablation, which is radiation to the ovaries. So generally whenever I consider these treatments for a patient, I discuss all three options with them. So obviously injections जो हैं वो costly होते हैं, and you have to take care of the dates and you have to be regular with the injections, so it's a commitment. लेकिन जो radiation होती है, that is again 5 sessions जो आपकी breast की radiation के साथ हो जाते हैं, एंड रेडिएशन ट्रीटमेंट से जो ओवेरियन सप्रेशन होता है वो परमानेंट होता है। इस तरह सर्जरी इज़ वन टाइम सर्जरी एंड इट लीड्स टू परमानेंट ओवेरियन सप्रेशन। लेकिन हार्मोनल ट्रीटमेंट जो हम इंजेक्शंस की शक्ल में देते हैं वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि 2 साल के लिए मैंने आपको इंजेक्शंस दिए और उसके बाद इफ़ आई स्टॉप इंजेक्शंस, सो आपकी ओवरीज दे कैन रिज्यूम देयर फंक्शन। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3 ऑप्शंस। बट ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो oophorectomy या सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज या रेडिएशन टू द ओवरीज इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू जो इंजेक्शंस हम देते हैं फॉर 2 years और 5 years। ऐसे पेशेंट्स जो कि स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर में डायग्नोज होते हैं और उनका ER/PR पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनको मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी कि वो जो है उनको हम बेसिकली हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट से ही ट्रीट करें। तो उनको टैबलेट्स तो हम देते हैं, बट इन एडिशन टू टैबलेट्स दोज पेशेंट्स हु आर प्रीमेनोपॉजल और जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, उनको इन एडिशन टू दैट ट्रीटमेंट ओवेरियन सप्रेशन की ज़रूरत होती है। दैट कैन बी डन इन आइदर ऑफ द 3 ways आई हैव जस्ट मैंशनड। सो इन तीनों वेज़ में से इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, सर्जरी भी हो सकती है, रेडिएशन भी हो सकती है। सो ऐसे पेशेंट्स जो स्टेज 4 के पेशेंट्स होते हैं उनको आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आइदर दे गो फॉर सर्जरी और दे गो फॉर रेडिएशन। सर्जरी इज़ एन इन्वेसिव प्रोसीजर, आपको एनेस्थीसिया में जाना है, आपको कट लगेगा। रेडिएशन इज़ इवन सिंपलर, आपको 5 सेशन रेडिएशन के देंगे एंड इट इज़ इक्वली इफेक्टिव एंड इट इज़ परमानेंट। सो स्टेज 4 के पेशेंट्स जिनको हम ये इंजेक्शंस ऑफर करते हैं, the ideal would be for those patients to have ovarian radiation rather than have these injections। अगर हम cost की बात करें तो इससे हम cost avoid कर सकते हैं। So stage 4 के लिए it is strongly recommended they either go for surgery or radiation to the ovaries, and those patients who have early stage cancer, they can either go for injections or depending on their family स्टेटस के उनकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं है, उसकी बेस पे वो ओवेरियन सप्रेशन विद सर्जरी और जो विद रेडिएशन, बिकॉज दीज आर परमानेंट्स, उसका भी डिसीजन ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओवेरियन सप्रेशन ट्रीटमेंट।